Good morning class. Welcome again in this video. So children, this is your maths online class and today we are going to revise our chapter addition. So children, although we have already studied this chapter before your unit exam, but once again we will revise this chapter and we will also learn the addition of 3-digit numbers. Okay, we have studied only the addition of 2-digit numbers before, but now we will also discuss the addition of 3-digit numbers. And first of all we will discuss the properties of additions. Okay, first हम क्या करेंगे, the properties of additions की कौन कौन सी properties होती है mainly. So just we will discuss about this. So this is the first property, order in adding two numbers. Okay, this is the first property of addition, order in adding two numbers. So this property is also known as commutative property. Okay, इसको हम क्या कहते हैं, in the mathematical language we will also call this property as commutative property. In this property, when we add two numbers, okay, when we add two digits or two numbers in any order, so we always get the result same in the both case. Okay, suppose as the example we have here, we have two numbers 3 and 4. Okay, and we add these numbers 3 plus 4. We have two numbers 3 and 4, and 3 plus 4 is equal to 7. Okay, 3 plus 4 is equal to 7. Now we will change their order. Okay, अब हम क्या करेंगे, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे. सो फर्स्ट वी विल राइट द 4 plus 3. Okay, in the first line we have written 3 first, then 4. 3 plus 4 is equal to 7. And the second line, now we have changed the order of these numbers and we have written the numbers as 4 plus 3. So 4 plus 3 is also 7. Okay, क्या है, हमने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, व्हेन वी चेंज द नंबर, वी राइट द नंबर्स इन एनी ऑर्डर एंड देन ऐड देम, सो वी ऑलवेज गेट द रिजल्ट सेम. बोथ केस में हमने क्या किया, रिजल्ट क्या मिला हमें, सेम. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और order in adding two numbers. So the property is when we add the numbers can be added in any order, the sum will be the same in both case. क्या है, the numbers, two numbers can be added in any order, the sum or the result of the numbers always be same in both case. ठीक है, अब दोनों केस में क्या मिल रहा है हमें, रिजल्ट सेम मिला. हमने पहले 3 plus 4 किया तो 3 plus 4 is 7. नाउ वी हैव चेंज देयर ऑर्डर. सो नाउ वी हैव डन 4 plus 3. ओके, तो 4 plus 3 is also 7. तो रिजल्ट क्या है दोनों केस में, 7. तो दिस रूल इज नॉन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और द ऑर्डर इन एडिंग टू नंबर्स. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. The second property is order in adding 3 numbers. Now we have to add 3 numbers. Okay, so suppose we have 3 numbers 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4. ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी 2 plus 3 को ग्रुपिंग कर देंगे, फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे, देन 4. सो 2 plus 3 इज़ हाउ मच, 2 plus 3 इज़ 5 एंड 5 plus 4 हाउ मच, 5 plus 4 इज़ 9. ओके, नाउ वी विल राइट, नाउ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स. सो वी विल राइट, आप 2 को साइड ले लीजिए, प्लस 3 प्लस 4. नाउ वी हैव ग्रुप्ड द 3 and 4. हमने 3 और 4 को क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया और 2 को क्या कर दिया, आउटसाइड ले लिया. ओके, देन
अभी क्या आएगा आंसर, 2 तो अपनी जगह है ही, 2 + 3 + 4 वी ऑलवेज ऐड द नंबर्स विच आर ग्रुप्ड फर्स्ट। ओके, जो हम क्या करेंगे पहले ग्रुप में जो है मीन्स द नंबर्स विच आर इन द ब्रैकेट्स वी ऐड फर्स्ट देन वी ऐड द सेकेंड नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया पहले 2 और 3 को पहले ऐड किया, तो 2 + 3 इज़ 5 and 5 + 4 is 9. Now we have changed their order, means to say we have grouped the 3 and 4 now. So 2 + 3 + 4, अब क्या करेंगे हम 3 + 4, so 3 + 4 is 7. Okay, and 2 + 7 is also 9. Okay, now we will write, अब हम क्या कर सकते हैं 2 and 4 को एक साथ लेके ग्रुप करो। सो 2 + 4 + 3 को आपने क्या कर दिया अभी आउटसाइड कर दिया। ओके, सो नाउ 2 + 4 इज 6 + 3, सो नाउ 6 + 3 इज ऑल्सो 9। ओके, सो हैव यू सीन हमने क्या किया, थ्री नंबर्स को, 3 डिजिट्स को इन डिफरेंट ऑर्डर में हमने इनको क्या किया ग्रुपिंग किया, ग्रुप्ड किया। ओके, देन वी ऐड 3 नंबर्स, द आंसर इज़ ऑलवेज सेम। हमें हर ऑल 3 केसेस में हमें क्या मिला आंसर 9। आपने पहले 2 and 3 को ग्रुप्ड किया एंड 4 आउटसाइड रखा, तो 2 + 3 इज़ 5 and 5 + 4 इज़ 9। नाउ वी हैव ग्रुप्ड 3 and 4, so 2 + 3 + 4, so 3 + 4 is 7 and 2 + 7 is 9. Okay, and the third case we have grouped 2 and 4, हमने 2 और 4 को पहले ग्रुपिंग किया, मीन्स पहले लिखा, इनके हमने क्या करते ऑल 3 नंबर्स के हमने क्या किए इनको डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखा। ओके, उनके हमने ऑर्डर्स को चेंज किया। सो नाउ 2 + 4 इज 6 and 6 + 3 इज 9। सो आंसर इज सेम इन ऑल 3 केसेस। ओके, हमें तीनों केस में क्या मिल रहा है आंसर सेम मिल रहा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिंग 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को हम व्हेन वी ऐड 3 डिजिट्स 3 नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट आंसर सेम इन ऑल 3 केसेज, इन ऑल केसेस। ओके, आप कितने भी केसेस में इनको, कितने भी ऑर्डर्स में इनको चेंज करो देन ऐड करो तो आंसर हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में associative rules or associative property. So children, you have to know only the properties as in this way, order in adding 3 numbers and order in adding 2 numbers. Okay, commutative property and associative properties are not in your syllabus, but I am generally telling you that these properties are known as in this names by commutative rules and associative rules. ओके, बट आपको सिर्फ कितना समझना है कि आपको आप जब 2 नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर्स में लिख के ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या रहता है सेम। ओके, एंड ऑल्सो व्हेन वी हैव ग्रुप 3 नंबर्स वी विल राइट 3 numbers in any order, so answer or the sum always will be same. Okay, so the second property is the numbers can be grouped in any order, the sum will be always same in all 3 cases, in all cases. Okay, this is the second property and I have also discussed these properties in your Zoom class also. Okay, now the third property is adding 0. Okay, so what is this property? This property means when 0 is added to any numbers, the sum is always the number itself. Okay, क्या होता है जब हम किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं, सपोज वी हैव द नंबर हियर 8. Okay, we have number 8 and we add 0 with it, so 8 plus 0 is 8. Okay, suppose we have second number 19, so 19 plus 0 is also 19. So means to say when 0 is added with any numbers, the result or the sum of the numbers of the additions will be नंबर इटसेल्फ। क्या रहता है जब हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं, चाहे वो नंबर 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो और 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी डिजिट्स का नंबर्स हो,
जब हम उसके साथ 0 ऐड करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या रहता है, द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वही आंसर रहेगा. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिंग 0. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिंग 1. Now the property is adding 1 means when we add 1 with any numbers, the sum always will be the next number. The answer will be always the next number. Okay, means to say, suppose we have add 5 plus 1. हमने क्या किया, 5 के साथ 1 ऐड किया. So 5 plus 1 is 6. तो 6 इज़ द नेक्स्ट नंबर टू 5. 6 क्या है, 5 का नेक्स्ट नंबर है. ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 6. सपोज वी हैव द नंबर हेयर 17. 17 प्लस 1 हमने किया. ओके, सो आंसर विल बी 17 के बाद क्या आता है, 18. Okay, so answer will be the next number or the sum will be the next number. So adding one property is means to say when 1 is added to a numbers, the sum is the next number on the number line. Okay, क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर के साथ 1 ऐड करते हैं तो जो उसका सम आता है, जो आंसर आता है वो क्या आता है, उस नंबर का जस्ट नेक्स्ट नंबर आता है. ओके, सो सपोज वी हैव ऐड द 1 with 5, so answer is 6. We have add 1 with 17, the answer is 18. Okay, so this is the property of adding 1 and property of adding 0. So children, these are the 4 main property in your syllabus. First is order in adding two numbers, order in adding 3 numbers, adding 0 and adding 1. Okay, now we will discuss the exercise work. So children, I have given you some exercise work in the worksheet number 10. Okay, so these types of sums I have given you, so I will explain these types of sum so that you can do also these types of sum. So the first question is fill in the blanks. 3 plus dash is equal to 4 plus 3. अब यहाँ पे देखो क्या है, 3 plus dash is equal to 4 plus 3. so आंसर क्या है, 4 plus 3 means एडिंग टू नंबर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे वो करती है. ओके, सो विच नंबर विल बी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4. 3 plus 4 मीन्स 4 plus 3. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन 18 plus dash is equal to 17 plus dash. नाउ इन द फर्स्ट लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 18 plus dash and the right hand side में 17 plus dash. तो which number will be here, here will be 17. 18 plus 17 will be 17 plus 18. okay, जो आंसर 18 plus 17 का होगा वही क्या होगा, 17 plus 18 का. this is the commutative property, and so you have to write here number 17. in the next dash plus 36 is equal to dash plus 29. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 36 नंबर है एंड राइट हैंड साइड में 29. So when we add the two numbers in any order, the answer will be same. तो यहाँ पे आप देखो 36 के साथ क्या ऐड करेंगे कि आंसर यहाँ पे 29 के बाद वही नंबर आना चाहिए. ओके, सो विच नंबर विल बी हेयर, 29. राइट हैंड साइड में 29 है, सो यहाँ पे क्या आएगा, 29 प्लस 36 विल बी 36 प्लस 29. ओके, in the next question 7 plus 2 plus 5 is equal to dash plus 2 plus 5. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर्स हैं, 7, 2 and 5 एंड राइट हैंड साइड में क्या है, 2 and 5. तो ऑलरेडी नंबर्स आर गिवन, सो विच नंबर विल बी हेयर, 7. ओके, यहाँ पे क्या है, 2 and 5 को ग्रुप किया गया है एंड यहाँ पे क्या है, 7 and 2 को ग्रुपिंग किया गया है. सो दिस रूल इज़ नॉन एज एसोसिएटिव रूल्स. एंड क्या होगा, जो डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वही डिजिट क्या होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 23 प्लस 45 प्लस 15. 3 नंबर्स आर हेयर, 23, 45 एंड 15. सो राइट हैंड साइड में क्या क्या है, 45 इज ऑलरेडी गिवन एंड 23 इज ऑल्सो गिवन. सो विच नंबर इज नॉट हेयर, दिस इज 15. सो हेयर विल बी 15. Okay,
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 प्लस डैश प्लस 18 is equal to 13 plus 18 plus 17. So in the right hand side, three numbers are here, 13 plus 13, 18 and 17. And in the left hand side, only 13 and 18 are given. So which number is not here? Here 17 is not here. So which number will be here? 17. Okay. So these are the sums based on adding two numbers property and adding three numbers property. Okay, means to say commutative property and associative property. Okay, so you have to solve also these types of sum like this. In the next question देखो यहाँ पे क्या है, adding 0 है, so 15 plus 0 is always 15 number itself, so here answer will be 15. 17 plus dash is equal to 17, so which number will be here? 0. आप 17 के साथ 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 17. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0 प्लस 18 विल बी आंसर 18 नंबर इटसेल्फ. 78 प्लस 0 इज आंसर 78. ओके. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, दिस इज द एडिंग वन प्रॉपर्टी. 57 प्लस 1, सो 57 प्लस 1 कितना होता है? हाउ मच? सो वी हैव टू कंसिडर दैट विच नंबर विल बी आफ्टर द 57. 57 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो नेक्स्ट नंबर टू 57 इज 58. तो आंसर विल बी 58. जब आप किसी भी नंबर के साथ 1 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? इसका नेक्स्ट नंबर. ओके, सो यू हैव टू ऑलवेज कीप द माइंड देन व्हेन वी ऐड 0 विद एनी नंबर्स तो आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, एंड व्हेन वी ऐड 1 विद एनी नंबर्स सो आंसर विल बी द नेक्स्ट नंबर. ओके, जो भी नंबर आप जिसके नंबर के साथ आप 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? उसका नेक्स्ट नंबर. same question is here. 66 plus dash is equal to 67. 66 के बाद 67 आता है तो मीन्स टू से here will be number 1. ओके, आपने क्या किया यहाँ पे? 1 ऐड किया. So these types of sums are based on the 4 main properties. Now we will discuss the next exercise work. So children, this is your worksheet number 11 also. And in this worksheet we have to add 3 digit numbers. Okay, हमने इस worksheet में क्या करना है? 3 digit numbers को add करना है. So first question is arrange the given numbers in their proper places, then add the numbers. First of all you have to arrange the numbers in their proper places. Okay, आपको सबसे पहले क्या करना है? numbers को proper places में लिखना है. So first number is 314 plus 203. सो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो फर्स्ट ब्लॉक को लीव करके देन यू विल राइट द देयर प्लेसेस. HTO मीन्स 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. नाउ यू विल राइट द नंबर्स. फर्स्ट नंबर क्या है? 314. सो यू विल राइट हियर 314 इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. देन द सेकेंड नंबर इज 203. सो यू विल राइट हियर 203. देन यू विल ऐड. सो 4 plus 3 is 7, 1 is 1, 1 plus 0 is 1 and 3 plus 2 is 5. So this is the answer. So children, you have also write the numbers like this in this way, and plus sign is always written in the first blocks. आप फर्स्ट ब्लॉक्स को लीव करोगे एंड फर्स्ट रो में आपने क्वेश्चन लिखा तो इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो को आप प्लेसेस यहाँ पे मेंशन करोगे. 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. ओके, then you will write the number in the proper places, then you will add the. Okay, this is the way to solve the sums. Okay, आपको इसी वे में अपने सारे सम्स को सॉल्व करना है, सारे सम्स को लिखना है. Okay, and you will also mention your answer. So this is your complete solution, and you also write these number also in this way. 324 plus 125. Okay, आप इनको भी इसी तरह से प्रॉपर प्लेसेस में पहले उनको राइट करोगे, अरेंज करोगे, देन यू विल ऐड दिस नंबर्स. ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 506 प्लस 493. सो दीज नंबर्स आर दीज सम्स आर ओनली द 3 digit एडिशंस विदाउट कैरिंग. इनमें कोई कैरिंग नहीं है, कोई कैरी नहीं है, तो दैट्स वाई यू हैव टू राइट इन दिस वे. आपको इसी वे में लिखना है. फर्स्ट लाइन में आप इनके प्लेसेस मेंशन करोगे, देन फर्स्ट ब्लॉक को लीव करोगे, देन आप इनके नंबर्स को इस तरह से प्रॉपर प्लेसेस में इनको अरेंज करके लिखोगे. ओके, देन यू विल ऐड द नंबर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ 3 digit numbers with carry. In the second question,
यहाँ पे आपको 3 डिजिट नंबर्स और 3 नंबर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट नंबर इज 658 प्लस 67 प्लस 436. Okay. So first of all we have write the places because these are the 3 digit numbers. So we have write 100 place, tens place and ones place. Okay, आपको क्या करना है, पहले इनके places लिखने हैं. Then you will first block you will leave and then second row you will write here, you will make here this type of बॉक्सेज और आप इनके सर्कल भी बना सकते हो फॉर द कैरी. ओके, आपको कैरी के लिए क्या करना है, सेकंड रो में इस तरह से आपको ब्लैंक छोड़नी पूरी लाइन और यहाँ पे आप इस तरह से सर्कल और स्क्वायर बना सकते हो. ओके, देन यू विल राइट द नंबर्स 658. देन द सेकंड इज 67 ओनली. दिस इट्स अ 2 डिजिट नंबर्स. 2 डिजिट है इसमें वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस. सो चिल्ड्रन वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये नहीं कि आपने 67 को यहाँ लिख दिया और यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक. नो, यू विल राइट 7 एट द वंस प्लेस एंड 6 एट द टेंस प्लेस. ओके, क्या करोगे आप 6 एंड 7 को वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस में लिखोगे. एंड आपका 100 प्लेस यहाँ पे लीव है, ब्लैंक है. सो यू कैन राइट हियर 0 ऑल्सो. ओके, अगर आप यहाँ पे जीरो नहीं लिखना चाहते तो यू कैन लीव दिस ब्लॉक एंड आपको otherwise you have to mention here 0. The next number is 436. So you will write here 436. Then you can add, अब देखो 8 plus 7 15 plus 6 21 and 21 1 is here and 2 is carry. So 2 carry आप कहाँ लिखोगे, in the given circle or given block. ओके, जो भी आपने यहाँ पे ब्लॉक बनाया या सर्कल बनाया वहाँ पे आप इसका कैरी लिखोगे. द नेक्स्ट इज 5 plus 6 11 plus 3 14 सॉरी एंड प्लस 2 इज 16 एंड 16 प्लस 16 का क्या लिखोगे आप 6 एंड 1 कैरी हेयर. 6 plus 1 इज 7 एंड 7 plus 4 11. सो अभी यहाँ पे बाद इसके बाद कोई डिजिट नहीं है ऐड करने के लिए, तो यू विल राइट 11 कम्प्लीटली हेयर. So the answer is 1161 and you will also mention here answer. Okay, आपको इस तरह से यहाँ पे आंसर भी लिखना है and this is the way to solve these types of sums. Okay, the next question is also like this. आपको इसको भी इसी तरह से places में पहले arrange करके लिखना है, then you will add these numbers. Okay, now word problem sums I have also given you. So first question is there are 323 girls and 264 boys in a school. How many students are there in the school? Okay, so क्या दे रखा है, एक स्कूल में 323 गर्ल्स हैं एंड 264 बॉयज़ हैं. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मच टोटल स्टूडेंट इन देयर स्कूल. ओके, तो क्या करोगे आप, टोटल आपको निकालना है दोनों का. सो इट्स जस्ट प्लस एडिशन है. आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, इसके प्लेसेस के लिए छोड़ा हुआ है. ओके, सो हेयर यू विल राइट सॉल्यूशन, देन यू हैव टू राइट स्टेटमेंट्स ऑल्सो. ओके, इन द वर्ड प्रॉब्लम सम्स इफ़ यू विल नॉट राइट द स्टेटमेंट्स तो योर सॉल्यूशन विल बी नॉट कम्प्लीटेड. ओके, आप जब तक स्टेटमेंट्स नहीं उसमें मेंशन करोगे, नहीं लिखोगे, तब तक आपका आंसर क्या है, आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं होगा. ओके, so these types of sums, first of all you have to think that what is the given, क्या दे रखा है क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 323 क्या है, गर्ल्स. सो यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ गर्ल्स. आप सिंपली क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स. इन स्कूल भी लिख सकते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी, आपको क्या लिखना, ओनली नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हाउ मच, 300. 1 ब्लॉक विल बी लीव. आप फर्स्ट ब्लॉक को क्या करोगे, लीव करोगे. देन यू विल राइट इन द प्रॉपर प्लेसेस 323. आपने क्या किया, 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस में नंबर्स को प्रॉपरली अरेंज करके लिखा. देन द नेक्स्ट लाइन व्हाट इज़ द गिवन, 264 क्या है, बॉयज़. तो यू विल राइट है नंबर ऑफ बॉयज़. क्या है सेकंड थिंग, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितने हैं, 264. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मच टोटल स्टूडेंट, क्या निकालना है आपको, टोटल स्टूडेंट. So you will write here total students and then you will add
these things. So 4 plus 3 is 7, 6 plus 2 8, 3 plus 2 5. ओके एंड तो देखो फर्स्ट ब्लॉक में हमने जो लीव किया वहाँ पे क्या रखा है, प्लस साइन. ओके आप प्लस साइन को यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखोगे. प्लस साइन या और माइनस साइन जो भी आपका प्रोसेस होती है उसको आप क्या करोगे, सेपरेट ब्लॉक में लिखोगे. ओके सो दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन. देन यू विल राइट आंसर ऑल्सो. आंसर में क्या है, ये अभी टोटल आपके क्या मिला है, स्टूडेंट्स कहाँ है, ये स्कूल में. सो यू विल राइट हियर देयर आर टोटल 587 students in the school. So children, this is the complete solution of this types of sums. Okay, इस तरह से आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ पूरा सम्स को सॉल्व करना है. ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन I will just give you idea. You have to do this sum by yourself. So one basket contains 245 apples. क्या दिए हुए हैं, 245 apples. So you can write here number of apples is equal to 245. Then second basket contains, or you can write here in the first basket. आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट बास्केट में कितने हैं, सेकेंड बास्केट में कितने हैं, थर्ड बास्केट में कितने हैं. एंड यू कैन राइट ऑल्सो नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ओके सो बोथ यू कैन राइट, आप लिखो in fruits in one basket, fruits in second basket and fruits in third basket. या आप लिखो number of apples, number of mangoes and number of oranges. So number of apples are 245, number of mangoes are 364 and number of oranges are 175. Then you will add these all three numbers. Then answer will be total fruits in basket. The fourth statement you will write total fruits. क्या हमें फाइंड करने हैं, टोटल फ्रूट्स. सो आंसर विल बी, देन द नेक्स्ट लाइन विल बी, you will write there are total dash fruits in the basket. Okay, so this is the complete way to solve the word problem sum and you have to do this sum by yourself. I have already given you idea आपको किस तरह से करना है. फर्स्ट आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एप्पल्स. Then you will write in the second row number of mangoes and in the third row number of oranges and the fourth row you will write total fruits. Okay, या total numbers of fruits. Then answer will be there are total dash fruits in the basket. Okay, thank you.